students. Today I am going to explain remaining part of this chapter number 2 in exercise 2.3, question number 2. Find the remainder of given polynomial. Find the remainder of given polynomial x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. When we divide this polynomial by x minus a, then what will be the remainder of this polynomial? X minus a equals to 0, then x equals to a. Now we put value of x in this polynomial, then x cube means a square minus x square मतलब a square plus 6 into x मतलब 6 into a माइनस ए क्यूब का आंसर आएगा ए क्यूब ए स्क्वेयर इंटू ए इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 6 इंटू ए इक्वल्स टू 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू द 0 6a minus a equals to 5a. So we find remainder as 5a of this polynomial when we put value of x equals to the a. Now next sum, question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. Solution: 7 plus 3x will be the factor of 3x cube plus 7x only if 7 plus 3x equals to 0, then find the zeros of this polynomial equals to minus 7 upon 3. Now we put value of this x minus 7 upon 3 in this polynomial. Minus 7 upon 3 equals to 0 of this polynomial. Then we put value of x equals to minus 7 upon 3 in this polynomial. Then we find 3 into minus 7 upon 3 square plus 7 into x मतलब x की value है इधर minus 7 upon 3. Now when we square this bracket, then we find when we cube this bracket, then we find minus 7 cube equals to minus 343. 343 is a cube of 7. So we find minus 343. Here power of minus sign is equals to the 3. So 3 is an odd number. So we find final answer is in negative. 3 cube equals to 27 plus minus 7 into 7 मतलब 49 upon 3. Here we cut 3 with 27, then we find 9 here minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. Now we take LCM of 9. Then we multiply 49 with 3, we find 147 upon 9. Same denominator write one time, so we write here minus 343 minus 147. सेम साइन, दोनों की सेम साइन दी हुई है, इसलिए हम डिजिट का टोटल करेंगे. टोटल ऑफ दिस टू डिजिट इक्वल्स टू 490 upon 9. This number is not equals to the 0. So we can say that 7 plus 3x is not a factor of this polynomial. This given polynomial 3x cube plus 7. Now next, exercise 2.4, question number 1. Determine which of the following polynomial has x plus 1 is a factor. Question 1. Solution of 1. Let p of x equals to x cube plus x square plus x plus 1. The zeros of x plus 1 equals to minus 1. We have to check x plus 1 is a factor of this polynomial or not. So x plus 1 is the zeros of x plus 1 is minus 1. Now we put minus 1 in this polynomial. So p of minus 1 equals to minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 plus 1. माइनस 1 क्यूब का फाइनल आंसर मिलेगा माइनस 1 स्क्वायर. माइनस की साइन पे
इवन नंबर की पावर है, सो फाइनल आंसर इज इन पॉजिटिव. सो -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 in -1 plus minus minus, so -1 plus 1. 1 -1 plus 1 equals to the 0 and -1 plus 1 equal to the 0. So 0 plus 0 equals to 0. So by the factor theorem, x plus 1 is a factor of this polynomial. Next sum with same method, p of x is given x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. The zeros of x plus 1 we know -1. Now we put -1 in place of x, then we find -1 raised to 4 plus -1 cube plus -1 square plus -1 and plus 1. -1 raised to 4 का फाइनल आंसर मिलेगा 1. -1 क्यूब का आंसर मिलेगा -1, क्योंकि माइनस की साइन के ऊपर इवन ओड पावर है, इसलिए फाइनल आंसर मिलेंगे इनटू नेगेटिव. प्लस -1 स्क्वायर इक्वल्स टू +1 प्लस माइनस so -1 here and +1. 1 minus 1 equals to 0. 1 minus 1 here also equal to 0. Then 1 final answer is 1. 1 not equals to the 0. 1 0 नहीं है. So we can say that by the factor theorem, x plus 1 is not a factor of given polynomial. With same method you can solve question number 3 and 4 in homework. Now question number 2 of exercise 2.4. Use the factor theorem to determine whether g of x is the factor of p of x. Here given two polynomials g of x and p of x. P of x in question 3, p of x equals to x cube minus 4x square plus x plus 6, and g of x is given x minus 3. Now we find, first of all we find 0 of g of x. 0 of g of x equals to the 3. So 0 of g of x is 3. Put 3 at the place of x. Then we find p of 3 equals to 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9. 9 4 जा 36 plus 3 plus 6. 27 plus 3 plus 6 equals to 36. 36 minus 36 equals to the 0. सेम साइन वाले इधर 27 है, 3 है और 6 है. वो तीनों का जब हम सम करेंगे तो आंसर मिलेगा 36. 36 में से 36 निकाल देंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 0. सो वी फाइंड 0 where we put x equals 3 in given polynomial. So by the factor theorem, g of x is a factor of p of x because we find 0 here. So that now question number 1 and question number 2 of question number 3 is in your part in homework. Now question number 3. Question number 3 का 2 नंबर का सम हम सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का सम है p of x equals to 2x square plus kx plus root 2. If find the value of k if x minus 1 is a factor of given polynomial. Factor of this polynomial is given x minus 1. So x minus 1 is a factor of polynomial. Then we substitute x value of x equals to 1 because x minus 1 equals to 0. Then we find value of x equals to the 1. When we put x equals to 1 in this polynomial, then value of this p of 1 equals to 0 because x minus 1 is a factor of given polynomial. We in earlier lecture also we learn about them. When factor theorem, when x minus 1 is a polynomial, is the factor of this given polynomial, then p of 1 is always 0. So we put p of 1, then 1 at place of x, 2 1 square plus
k into 1 plus root 2 always 0 because x minus 1 is a factor of p of x. So p of 1 always become 0. 2 into 1 square मतलब 2 plus k plus root 2 equals to the 0. 2 का साइन इधर प्लस का है, इधर रूट 2 का साइन भी प्लस गिवन प्लस है. सो when we subject k, then k equals to -2 minus root 2. माइनस साइन हम कॉमन निकालेंगे तो k की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस अंडर रूट into bracket 2 plus under root 2. Clear? Now with same method we solve next sum number 4. P of x equals k square minus 3x plus k. If x minus 1 is a factor of this polynomial, then p of 1 always become 0. So p of 1 equals to k 1 square. When we put 1 here, then we put 1 in this polynomial also. Get the value of x. So k 1 square minus 3 into 1 plus k equals to k into 1 का आंसर मिलेगा k. 3 into 1 मतलब minus 3 plus k. k plus k equals to 2k minus 3 equals to the 0. When we subject k, then we find value of k equals to 3 by 2. Clear? With same method you can solve question number 3 का 1 and 3 with same method. वो भी बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा. Question number 4, factorize the following polynomial. Question number 1, 12x square minus 7x plus 1. ये सब सम आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी किए हैं. 7th में 8th में भी वो फैक्टराइजेशन आता है, इसमें आपने सोल्व किया हुआ है. 12 1 12. पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 12 1 12. अब आपको 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिसका सम करने से, जिसका टोटल करने से आपको मिड टर्म का कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाए. तो 12 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 6 1 6 6 2 12 और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आंसर मिलेगा. वो नहीं चलेगा क्योंकि हमको चाहिए 7. सो ये नहीं चलेगा. दूसरा हम निकालेंगे 4 3 12. 4 और 3 का जब हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 7. तो वो फैक्टर चलेगा. तो हम स्प्लिट करेंगे मिड टर्म को इसी तरह. 12x स्क्वायर 7x हम इस तरह लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3x. हमने क्या किया, मिड टर्म को स्प्लिट किया. मिड टर्म 7x हमने इस तरह लिखा माइनस 4x माइनस 3x मतलब माइनस 7x प्लस 1. क्लियर? अब हम इस फर्स्ट दो टर्म में से 4x को कॉमन निकालेंगे. तो 4x जब हम कॉमन लेंगे तो 12x में से 4x कॉमन आ जाएंगे तो बाकी बचेगा 3x. माइनस की साइन वही की वही रहेगी और 1. 4x इंटू 1 मतलब 4x इंटू 3x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर. इसी तरह सेकेंड 2 टर्म में से हम -1 को कॉमन लेंगे तो आंसर मिलेगा वो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस से वो माइनस हो जाएगा. देखिए अब दो ही टर्म मिली हमको. दो ही टर्म में से वो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1. तो बाकी बचा है 4x माइनस 1. तो इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेंगे. तो वो जो दो ब्रैकेट हमको मिला वो दो क्या है, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. जो हमने दो ब्रैकेट निकाले वो क्या है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. इसी तरह नेक्स्ट टर्म भी ऐसा है 3 2 6. 6 का हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे, ऐसा फैक्टर सोचेंगे कि जिस फैक्टर का दोनों फैक्टर का सम करने से मिड टर्म मिल जाए. तो 3 2 6, 6 1 6. So split this mid term as 6x plus x. Now we take common in both 2x, then we find x plus 3 and we take 1 as common,
देन x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट समान हो गए। इसको हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 ने कॉमन ले लिया, बाकी बचा है 2x प्लस 1, तो इसने हमको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया है। तो वो दोनों ब्रैकेट जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 6 जा 6 और 6 6 जा 36। 36 का ऐसा एक फैक्टर का पेयर चाहिए, पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए कि जिसका प्लस करने से मिड टर्म मिल जाए, जिसका प्लस करने से मिड टर्म मिल जाए। इधर माइनस दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 36 का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे कि दो फैक्टर का माइनस करने से हमको मिड टर्म मिल जाए, मिड टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाए। तो 36 6 जा 36, 36 का फैक्टर है 9 4 जा 36, और 9 माइनस 4 लेंगे तो 5 मिल जाएगा। वो तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म। सो हमने लिया 9x प्लस 4x, माइनस 4x माइनस 6, 9x माइनस 4x लेंगे तो 5x हो जाएगा। इस दो फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन लेते हैं तो बाकी बचा है 2x प्लस 3। इसमें से भी -2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 ब्रैकेट इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, सो वी फाइंड 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। So we find factor of 6x square plus 5x minus 6 equals to 2x plus 3 and 3x minus 2. Now, fourth of this question is in your part, in homework. You can solve easily. Now, question number 5. x 5 of 1 x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। सम इसका फैक्टर लेने से इसमें हम सभी मेथड की ट्राई करेंगे, बट हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या है, आपके पास फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम से और ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दी गई है मेथड। पर मैं टेक्स्ट बुक्स के अलावा एक और मेथड आपको नई मेथड पढ़ाऊंगी जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है। वो मेथड अच्छी है, आपको आ जाएगी समझ में। इसमें क्या करना है, पहले सम ऑफ कोएफिशिएंट, सभी जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है इसका हम सम करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, इसका सम करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। Therefore, x minus 1 is a factor of p of x. When sum of all the coefficient equals to 0, when we find sum of all the coefficient equals to 0, then x minus 1 is one of the factor of given polynomial. Always x minus 1 is a factor of given polynomial. कोई भी सम आपको दे, कोई भी सम आपको कोई भी पोलिनोमियल दे दे, इसका कोएफिशिएंट का तुम जब सम करोगे इसका आंसर 0 मिल जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दिस इज द थियरम, बट दिस थियरम इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, बट इज इज द एक अलग मेथड है जो आप तो इसके सहारे से आप इसका ये सम सोल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर गिवन पोलिनोमियल। नाउ पहले आप क्या करेंगे, इसमें सभी का पहला कोएफिशिएंट लिख लेंगे, सभी टर्म का कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 वो सब आप पहले लिख लेंगे। बाद में क्या करेंगे, आपको जो ये मिला x माइनस 1 फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस 1 में से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 1। x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का 0 क्या मिलेगा, 1। तो वो आपको इधर लिखना है, जो आपको x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, जो x की वैल्यू मिलेगी वो इधर आपको लिखनी है। इधर 0 ही रखना है कायम के माटे,
जीरो रखना है। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, -2 प्लस 1 करेंगे तो आंसर मिलेगा -1, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 आंसर मिलेगा। जो आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो तो आप इधर रखेंगे, -1 करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आएगा, 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। इधर जो भी आंसर मिले वो आपकी रिमाइंडर होगी, इधर जो भी आंसर मिले वो रिमाइंडर आ जाएगी। और ये जो कोएफिशिएंट मिला है वो दूसरी पॉलिनोमियल का मिला है, तो ये वन फैक्टर तो आपने निकाल लिया, x minus 1 is one of the factor of given polynomial, then other factor is x square minus x plus 2। ये कोएफिशिएंट का यूज करके आप अदर फैक्टर इधर लिख सकते हैं। तो आपको जो p of x दिया हुआ है, p of x मतलब x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का हमने दो फैक्टर निकाला, x माइनस 1 एंड सेकेंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ये नई मेथड है आपके लिए, 2 बार देख लेना और समझ लेना। इसी तरह इस मेथड से आप बाकी बचे हैं 3 सम्स वो सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस बचे इतना कंप्लीट कर लीजिए और बाद में जो एक्सरसाइज 2.5 दी हुई है वो सब में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। बस आज इतना ही रखती हूँ, आगे प्रैक्टिस करते रहना। और फिर जो एक्सरसाइज के आगे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं सोल्व करके इसमें वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना इसी मेथड से। वो मेथड आपको 2 बार 3 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, रखती हूँ।